ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਬਰਸਾਰ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 4 ਦਿਨ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਤੇ ਅੜਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਆਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਬਰਸਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ 4 ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਸਥਾਨਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ, 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ, 90 ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1% ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਰੋਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖਮਿਆਜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ABP ਸਾਂਝਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਬੜੇ ਨਿਧੜਕ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਊ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਡਬਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਬਸ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ। ਆਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਬਸ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਖਤਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਫ ਡਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਨੀਆ ਪਰਸਨ ਵਾਜਪਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ खबरसार में साथ शामिल है। वाजपेयी जी, सबसे पहले आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है आज के इस विशेष प्रोग्राम में। जी 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 स्वागत 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 है जी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार थानू जी। कैसे लग रहा है आजकल जो पहले किसी बड़े मीडिया के साथ बात कर कर और आज कनाडा जैसा मीडिया जो हमें फुल आज़ादी, हमारे पास कोई गोदी मीडिया नहीं है, इधर कोई गोदी या मोदी मीडिया नहीं है जो हमारी धौन के ऊपर इधर रख दे कि सरदार साहब ऐसे बोलना, ऐसे नहीं बोलना। जो सच है, जो रियलिटी है, जो असलियत है, वो लोगों तक पहुंचाने का यत्न करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है जी, तो है। ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नो, इफ इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वर्क, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, इधर फ्रीडम है। मैं थोड़ा सा आपके पास चलूँगा। आपके बहुत ज़्यादा वीडियो हैं, आपकी बहुत ज़्यादा टॉक्स हैं जो हम सुनते रहते हैं। आज एक ऐसा मौका मिला है कि असलियत जो है, जो इंडिया में मोस्टली टेलीविज़न चल रहे हैं, जो आउटलेट चल रहे हैं, उसमें से प्रॉपर न्यूज़ किसी को नहीं मिलती। ऐसे लग रहा है कि वाह, मोदी जी ने कमाल कर दिया, ये जो 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं उसके लिए कमाल है कि क्या किसानों के लिए काम किया है। व्हाट इज़ दैट 3 ऑर्डिनेंस? सबसे पहले हम उधर से शुरू करेंगे। ये जनता को मूर्ख बनाने का एक स्टंट है या वाकई किसान खुश हैं? जी शुक्रिया जी। सवाल है कि सरकार जब है और सरकार अपने लिहाज से काम करना चाहती है जी, तो वो किसी को खुश करने से पहले खुद को सत्ता में बनाए रखने के लिए ही एक मंच तैयार करती है। जी, किसान खुश है या नहीं, मजदूर खुश है या नहीं, इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ी छोटी चीजें हो जाती है। जी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिले गए अधिकारों को भी ना दे पाए और रूल ऑफ लॉ ना रहे तो एक मुश्किल सवाल होता है। जी, जो 3 बिल आए हैं, इसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत जैसे देश में अगर मार्केट तय करने लगेगा कि वो कौन प्राइस पे चावल लेगा, गेहूं लेगा, धान लेगा, जी, चावल लेगा, आलू लेगा, प्याज लेगा, तो इसका मतलब ये है कि वह मार्केट बहुत कैपिटलिस्ट या कहें पूंजीपतियों के पास ही हो सकता है, वही सक्षम होंगे। लेकिन सरकार ने इसमें एक पैरेलल चीज जो एक और क्रिएट कर दी कि जो एसेंशियल गुड्स को लेकर जो पाबंदियां थी, तीसरा वह भी हटा ली। तो उसको हटाने का मतलब यह है कि बहुत साफ है कि आप किसान के पास भारत में इतनी पूंजी होती नहीं है कि वह अनाज लेकर जाए और मंडी मंडी जाए या बाजार बाजार में घूमे और बेचे। ये संभव नहीं है क्योंकि उसको अगली फसल देखनी है, फिर बुआई करनी है, फिर कटाई करनी है, दुनिया भर की देनदारियों को देना है, एक पूरा प्रोसेस है भारत में। बिल्कुल। और जमीन सबके पास बहुत कम जमीन है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग बहुत जमीनों के साथ रहते हैं। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से जानना चाहते हैं तो सोचिए कि
भारत में 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन भी नहीं है। वाह। तो हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं, और वहां पर अगर मार्केट तय करने लगेगा तो इसके पीछे का दूसरा सच ये है कि भारत में एवरेज इनकम जो है किसानों की, वह लगभग 6,500 है। और 6,500 का मतलब ये हुआ कि उसके नीचे भी बड़े तादाद में राज्य होंगे और उसके ऊपर भी कुछ राज्य होंगे। ऊपर में सिर्फ 6 ही राज्य हैं, उसमें एक पंजाब है, एक हरियाणा है, एक कर्नाटक है, एक तमिलनाडु है, एक केरल है, एक महाराष्ट्र है, बाकी सब उसके नीचे आते हैं जी। और बहुत कम आए हैं। और जो एमएसपी निर्धारित किया जाता है कि कम से कम मूल्य इतना दिया ही जाएंगे, इसको एक्चुअल में लाल बहादुर शास्त्री ने लागू किया था 1965 में, जब भारत और चीन का वार हुआ था। उस समय भारत में अनाज कम हो गया था, तो उन्होंने किसानों से कहा था कि आप अनाज उपजाइए, और उसी समय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। बिल्कुल। हाँ, और छोटे किसान जो थे उनको ये सहूलियत दी गई थी कि एक हम एमएसपी तय करेंगे, इसके जरिए आप जितना भी अनाज होंगे तो उसकी कीमत आपको मिल ही जाएगी जी। लेकिन आज की स्थिति यह है कि एमएसपी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाज सिर्फ 6 to 7% से ज्यादा नहीं ले पाती है। ओके। बाकी ओपन मार्केट में ही जाता है, और इस 6 और 7% के दायरे में 80% लोग जो हैं, 80% किसान जो हैं, वो हरियाणा और पंजाब के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा संकट हरियाणा पंजाब के सामने ये आ गया कि कल को उनको तो एमएसपी का रेट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट तो ओपन हो गया। बिल्कुल। और जो अनाज खरीदने निकलेगा वो बिहार में क्यों नहीं खरीदेगा, जहां पर एमएसपी 1800, अब तो 1925 कर दिया गया है, लेकिन बिकता है वहां पर अब भी लगभग 900, 1000, 1100। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा गैप है, और ये स्थिति पंजाब में और बिगड़ जाएगी जी। और वहां के किसानों की दूसरी स्थिति क्या है, जो मंडियां चलती हैं, तो मंडियों में बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार भी मिलता है। आपकी जानकारी के लिए वैसे बता दें कि जिनको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ, जिनको आड़ती कहते हैं, जी जी, उनको लाइसेंस वाले आड़ती हैं सिर्फ पंजाब में 28,000, 28,000। वाह। ओके। लेकिन कुल आड़ती हैं लगभग 40,000। इनके साथ जो क्लर्क काम करते हैं उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है जी। इन क्लर्क के साथ जो मजदूर काम करते हैं उनकी संख्या 10 लाख से ज्यादा है जी। पूरे पंजाब के भीतर में लगभग 1,880 मंडियां हैं जी। स्थिति क्या होने वाली है, ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे जी। किसान जो कमजोर है, छोटा किसान है, कम जमीन वाला किसान है, वो मजदूर में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद वो शहर आएगा रोजगार के लिए, शहर में मजदूरों की भरमार हो जाएगी। भारत की इकोनॉमी इस बीच में डामाडोल चल रही है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो मजदूर औने पौने दाम में रखे जाएंगे। इसके पैरेलल में सरकार ने एक और डिसीजन ले लिया कि अब कोई भी कंपनी का मालिक या कोई भी इंडस्ट्री का मालिक जिसके मातहत 300 मजदूर काम करते हैं, वो विद इन ए सेकंड्स हटा सकता है, किसी को भी हायर कर सकता है। इसमें सरकार दखल नहीं देगी, और जिसको हटाया जाएगा वो अदालत नहीं जा सकता है, कोर्ट नहीं जा सकता है। वाह। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है मौजूदा वक्त में। इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो किसे लाभ पहुंचा रहे हैं? फायदा किसको हो रहा है? फायदा किसको हो रहा है? और जिसको फायदा हो रहा है तो क्या वो फायदा सिर्फ उसको इसलिए कराया जा रहा है कि उसको फायदा हो जाए, या उसके पीछे भी कोई फिलॉसफी है? यस। तो पहली फिलॉसफी ये होती है कि भारत में इलेक्शन लड़ना बड़ा कॉस्टली अफेयर है, बहुत। आपके पास पैसा होना चाहिए जी। उसको लीगलाइज करने के लिए व्यवस्था की गई कि जो कॉर्पोरेट फंड देगा या बॉन्ड खरीदेगा उसमें पैन नंबर डाल देगा। और लेकिन जब नया बॉन्ड, इलेक्शन बॉन्ड जब जारी किया गया 2018 में, 2019 के ठीक इलेक्शन से पहले, उसमें इस बात का जिक्र किया गया कि उनके नामों का जिक्र कोई नहीं करेगा जो बॉन्ड खरीदेंगे। जी जी। वह 1 करोड़ का बॉन्ड हो सकता है, 10 करोड़ का बॉन्ड हो सकता है, 100 करोड़ का बॉन्ड हो सकता है, लेकिन उनका नाम कोई नहीं जानता, डिस्क्लोज नहीं होगा। डिस्क्लोज नहीं होगा। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग होंगे जो इतना पैसा दे दें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट,
वाह, उनको भी तो कुछ लाभ चाहिए। चाहिए नेचुरली। तो बिल्कुल। उनके लिए एक जमीन बनाई जाती है। हाँ जी। वो जमीन बनाने के लिए पार्लियामेंट का उपयोग होता है। हम्म। पार्लियामेंट में इसीलिए अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं, इसीलिए अध्यादेश लाए जाते हैं, इसीलिए वहां पर विधेयक लाए जाते हैं। और संयोग से पहली बार पार्लियामेंट में ऐसे वक्त में इस अध्यादेश को पास किया गया जिसमें अपोजिशन कह रहा है कि आप कम से कम इस पे वोटिंग तो करवा लीजिए। वोटिंग, बिल्कुल। हाँ जी। तो संयोग से वह भी नहीं हो पाया, उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ। वाह। इसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि पैसा जाएगा पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर, जो दे रहा है उसको गवर्नमेंट पॉलिटिकल तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली उसके लिए रास्ता बनाएगी। और इस प्रोसेस में किसान, मजदूर या कोई भी तबका, वो कोई मैटर बहुत नहीं करता है। संकट ये हो गया है जी, जो बड़ा मुश्किल सवाल है इस देश के सामने। जो आप बता रहे थे कॉमोडिटी वाली बात लास्ट में, जी उसमें क्योंकि कंज्यूमर जो है, लास्ट जो तीसरा ऑर्डिनेंस है, लीगलिटी वाली बात भी बता दी कि प्रॉब्लम ये हो गई कि अभी किसान जो है, भारत का जो किसान है वो घसियारा बन गया, वो मजदूर बन गया। जिनको प्राउड होता था कि ये ज़मीन मेरी है, उस ज़मीन के ऊपर जो कारपोरेट घराने हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो लोन ले सकते हैं, परंतु जो किसान है वो नहीं ले सकता। उसके बाद जो इसकी बनाई हुई फसल है, जो फसल वो पैदा कर रहा है, चाहे वो सब्जी है, जैसे आपने बोला है गेहूं है, धान है, क्योंकि आई वॉज रीडिंग लिसनिंग यूर स्टैट्स कि उसमें कितना कितना जो है फसल है जो आ रही है। और उसमें खास करके अभी ये भी बताया जा रहा है कि ये जो तीनों ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, इसके पीछे कहीं बिहार वाली इलेक्शन का मुद्दा तो नहीं है? जैसे ही इसको ऑर्डिनेंस पास हुए, नेक्स्ट डे बिहार का इलेक्शन अनाउंस कर दिया। क्या लगता है आपको कि इससे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट होगा? नहीं, मेरे ख्याल से इसके पीछे बिहार इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिहार में मंडी जो है 2006 में ही खत्म हो गई थी। और बिहार से एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वह यूं भी सबसे कम अनाज एमएसपी पे लेती है। आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ 0.03% ये ओवरऑल जो एमएसपी पे लिया जाता है, बिहार से इतना कम लिया जाता है। मसला ये बहुत साफ है कि जो कॉर्पोरेट का जिक्र बार बार आ रहा है, इसको थोड़ा इस रूप में समझिए कि भारत में लगभग 23 करोड़ लोग पीडीएस सिस्टम से जुड़े हुए हैं, जो कि राशन दुकानों से अनाज मिलता है जी। वह पीडीएस सिस्टम को अगर एक झटके में आप मार्केट के हवाले कर दें तो 23 करोड़ कंज्यूमर किसी भी कॉर्पोरेट को मिल जाएंगे। यानी कल को अगर ऐलान हो जाए कि आपको राशन दुकान से अनाज नहीं मिलेगा, जी जी, गवर्नमेंट आपको कैश ट्रांसफर कर देगी जी। अब आपको कैश दिया जाएगा, जनधन खाते खुल गए हैं, उसमें आपको 1000 देंगे या 500 देंगे या 2000 देंगे, ये तय कर लेंगे, लेकिन कैश ट्रांसफर किया जाएगा और आप मार्केट से जाके गेहूं, चावल जो भी आपको खरीदना है खरीदिए। और उसको बेचने के लिए जो रिटेल सेक्टर और थोक सेक्टर है, वो संयोग से कॉर्पोरेट के हाथ में होगा जी। तो कॉर्पोरेट किसानों से वही अनाज उपजाएगा जिससे उसको लाभ हो रहा है। आप कुछ दूसरा उपजाएंगे तो बोलेगा हम नहीं खरीदेंगे, तो आप कहां बेचेंगे? एक नई मुसीबत आ गई। तो ये एक ऐसी साइकिल क्रिएट हो रही है जिसमें किसान भी निर्भर है कॉर्पोरेट के ऊपर, मिडिल क्लास जो कंज्यूमर है वह भी निर्भर हो जाएगा कॉर्पोरेट के ऊपर, और जो राशन दुकान वाला है वह भी निर्भर हो जाएगा उसी कॉर्पोरेट के ऊपर। और वो कॉर्पोरेट बोलेगा थोड़ा सब्सिडाइज आपको दे देते हैं जी जी, लेकिन सब्सिडाइज का रेट जो होगा वो वही तय करेगा। चाहे वो कॉर्पोरेट है तो उसको मुनाफा तो चाहिए जी, उसकी एक अपना बिजनेस मॉडल है उसका अपना। लेकिन भारत एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर आजाद हुआ। भारत के भीतर में मार्केट इकोनॉमी चीजें तय ना करे, इसीलिए सरकार ने बंदिशें लगाई, इसीलिए ये एसेंशियल प्रोडक्ट का कानून आया गया। अगर हम लोग ये मान लें कि इस देश में इनकम सबकी बराबर है, सबको टैक्स देते हैं,
सारे लोगों को एजुकेशन एक बराबर मिलती है, जी, हेल्थ जी। सिस्टम सबके लिए एक बराबर है, तब तो ठीक है। लेकिन हमें पता है कि भारत के भीतर में लगभग 10 से 12 करोड़ से ज्यादा लोगों से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन का है ना हेल्थ का है, ना हम अनाज खरीद पाने की स्थिति में आ पाते हैं उनसे ज्यादा लोगों पे। तो इसका मतलब है कि उस असमान समाज के भीतर में हमने एक बड़े तबके को दरकिनार कर दिया और कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब आप समझिए हम कुछ पैसा आपको दे दिया करेंगे। ओके, यानी भारत में सरकार जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, ये डेंजरस हो गया है। ਜੀ ਬਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ FCI ਦੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ FCI ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। नहीं, एफसीआई के पास जितने गोडाउन है आपको यह भी जानकारी हैरत में डाल देगी कि भारत के भीतर में एफसीआई जितने अनाज को खरीदता है उसको रखने के लिए भी उसके पास अपने पूरे गोडाउन्स भी नहीं है, जी। उसको किराए पर गोडाउन्स देने पड़ते हैं। जी जी। और किराए पर गोडाउन्स का जो पेमेंट होता है हर साल वो एवरेज 2000 से 3000 करोड़ के बीच में है। वाह, 2000 से ये 3000 करोड़। करोड़। 2381 करोड़ से लेकर 2987 करोड़ के बीच में आता है, जो लास्ट 6 इयर्स का आप देखेंगे तो इसके भीतर जो गवर्नमेंट ने कहा कि हम अपने गोडाउन बनाएंगे और उसकी जब बजटिंग की गई, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था उसमें, उसके बाद तो नीति आयोग बन गया, उसने जब निकाला डाटा उसने बड़ी शानदार चीज बताई। उसने कहा कि अगर आप 2 साल किराया नहीं दें तो आप इस देश के भीतर में अपने गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इतना हमने किराया अपने दे गोडाउन क्रिएट नहीं किए, हमने पैरेलल में प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी एक करप्शन है, उसमें भी पैसा कमीशन मिल जाता है, जिनके गोडाउन हायर किए जाते हैं उसमें एक अलग प्रोसेस है वो। लेकिन हम लोग लगातार एफसीआई के गोडाउन कम हो रहे हैं, किराए पर गोडाउन ज्यादा लिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि अब एफसीआई के गोडाउन्स क्या करेंगे। तो पहला एफसीआई ने समझौता किया अडानी के साथ 700 करोड़ का, पहला जो छोटा था। उसके बाद एफसीआई ने दूसरा सबसे बड़ा समझौता किया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ कि हम प्रोक्योरमेंट रखेंगे, आपका अपने पास रखेंगे, हाई टेक्नोलॉजी है हमारे पास। और ये करते करते उसने अपने टारगेट्स बना लिए कि हम इस रूप में चीजों को डेवलप करेंगे। इसका मतलब यह है कि सरकार अब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है और जो कॉर्पोरेट है उसके हाथ में चीजें दे रही है। इसमें किसान मैटर नहीं करता है, मिडिल क्लास मैटर नहीं करती है, कंज्यूमर मैटर नहीं करता है, कॉर्पोरेट का प्रॉफिट मैटर करता है। और उसी लिहाज से अगर हम लोग कानून बना रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ कहता है कि आपको जीने के अधिकार में न्यूनतम जरूरतें जो है उसमें शामिल होनी चाहिए, उसमें शिक्षा भी है तो राइट टू एजुकेशन है, उसमें भोजन भी है तो राइट टू फूड आ गया हमारे यहाँ। ये सारी चीजें धीरे धीरे गायब हो रही है, संकट ये है हमारे यहाँ। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? मेरे ख्याल से नहीं, ये आप जो कह रहे हैं इसमें एक चीज समझनी चाहिए, ये जो करप्शन था ये कोई आज का नहीं है भारत में जी। ये इससे पहले मनमोहन सिंह थे उनके दौर में भी था, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी था, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में भी था, ये हमेशा से रहा है जी। अब क्या है कि करप्शन को लीगलाइज किया जा रहा है, लीगलाइज्ड, यस दैट इज द राइट उसको वर्ड। सिस्टमेटिकली सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुश्किल ये है अभी तक आप डरते हैं, कुछ अपराध करते हैं तो या क्राइम करते हैं तो आपको एक डर होता है। हाँ जी। अब आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि डरने की क्या जरूरत है, यही कानून है, तो आप क्या करें। ओके, सो लीगलाइज कर दिया कि यस यू कैन डू इट। जैसे आप बता रहे थे कि एफसीआई का के अलावा जो गोडाउन रेंट पे लिए जा रहे हैं उनका इतना रेंट है कि उस रेंट के साथ ये अपने गोडाउन बना सकते हैं, परंतु दे आर पेइंग बैक टू दोज पीपल, उन लोगों को वापस दे रहे हैं जिन्होंने उनकी इलेक्शन में मदद की है। लगता नहीं कि भारत में सरकार जो है वो भाजपा नहीं चला रही, बल्कि ये कुछ जो घराने हैं 12-13 वही चला रहे हैं, जैसे उनकी मर्जी है वैसे चल रही है।
नहीं, वैसे 12-13 नहीं है, 5-6 ही है। 5-6 ही है। दाद देनी पड़ेगी आपके हौसले की। 5-6 व्यक्ति और वो हर हिंदुस्तान। कोई जानता है। देखिए क्या है, इसको थोड़ा हमको लगता है और इजी वे में इसको समझना चाहिए कि कॉरपोरेट मिसेस गांधी के समय से हावी रहा है, कोई नई बात नहीं है। जी और धीरू भाई अंबानी जो थे वह किस रूप में आए और किस रूप में पॉलिटिक्स में उन्होंने अपने अनुकूल कर लिया, ये भी कोई बात पुरानी नहीं है। ये हर कोई जानता है कि उनके एक हाथ में सोने का जूता रहता था, एक हाथ में चांदी का जूता रहता था। वो बोलते थे जिससे काम चल जाएगा उसी से चला लूंगा। वाह। तो करप्शन कोई मैटर नहीं करता है। सवाल देखिए पहली बार ये हो गया है कि जो बेसिक चीज है, पीने का पानी बेसिक चीज है, उसको आप प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे। अगर एजुकेशन बहुत मिनिमम चीज है कि वो होना चाहिए हमारे यहाँ, उसको आपने कानून भी बना दिया, लेकिन हमारे यहाँ एजुकेशन को मिड डे मील से जोड़ दिया गया। जी। मिड डे मील जो है 8 तक के बच्चों को मिलता है, फर्स्ट क्लास से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील मिलता है। तो मिड डे मील मिल रहा है तो वो स्कूल जाते हैं, जैसे ही वो 9th में पहुंचते हैं वो स्कूल छोड़ देते हैं, अगले दिन से वो लेबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो स्कूल नहीं जाते हैं। और रेशियो जो है 8 के बाद से एक झटके में लगभग 40% गिर जाता है। 40% बच्चे लेबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। जी। यानी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, स्कूल में भोजन है। उसका बजट भी बड़ा नॉमिनल है, ईयरली जो है वो 10 to 12,000 करोड़ का है। जी। तो अगर आप इस देश के बेसिक पॉइंट्स पे आएंगे तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो जैसे अभी महामारी का वक्त है, कोविड-19 को लेकर है, तो इस देश में बहुत मुसीबत हो गई, लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं था, कुछ नहीं था। तो लगभग सरकार ने एक अनुमान लगाया कि इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। तो अच्छी बात है, सरकार ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को क्यों ना हम 5-5 किलो अनाज दे दें। अब इसका जब बजट निकाला गया तो आपको जानकर हैरत होगी कि 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो अनाज देने पर सिर्फ 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, 2.25 लाख करोड़ रुपए ये खर्च हो गए। जो 13 करोड़ बच्चे हैं जिनके लिए मिड डे मील चलता है, जिनको स्कूल इसलिए जाते हैं कि मिल जाए, उनके लिए लगभग 1,200 करोड़ का उनका बजट है, वो भी हटा दीजिए। उसके बाद मनरेगा जो सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में बिल्कुल मजदूरों को जोड़ता है, उसका बजट इस बार बढ़ाकर कर दिया गया महामारी की वजह से। वो पहले बजट जब लागू किया गया था तब 60,000 करोड़ था, उसमें 40,000 करोड़ और जोड़ दिया गया तो वो 1 लाख करोड़ हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये रकम को जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो इस देश में लगभग 80% लोगों को आप जिंदगी जी सकते हैं 2 जून की रोटी के साथ, सिर्फ 4 लाख करोड़ में। वाओ। और 4 लाख करोड़ से ज्यादा या उससे 3 गुना ज्यादा यानी 12 लाख करोड़ एनपीए है बैंकों के ऊपर में। वो बैंक जिन्होंने कॉर्पोरेट्स को लोन दिए हैं और कॉर्पोरेट्स ने कहा हम लोन नहीं लौटा पाएंगे, और उसको हमने मान लिया वो बैड लोन है, वो पैसा वापस आएगा नहीं। बैंकों ने अपनी बुक को ठीक किया, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। यानी एक तरफ इतनी रईसी है और दूसरी तरफ इतनी मुफलिसी है। जी जी जी। और इस बीच में वह किसान था जो पीढ़ियों से इस देश को अनाज दे रहा था, पहली बार उस पर अटैक हो गया है। ओके, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਨ ਜੇ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। दे सुसाइड लॉट्स। पंजाब में, हरियाणा में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं कि सुसाइड कर गए। आज ये जो बड़े घराने हैं ये जब लोन लेते हैं, इनके पास कोई पुलिस या बैंक वाले चक्कर लगाते नहीं, या उनको पहले गारंटी में लिख के दिया जाता है कि आपको 5,000 करोड़ दे रहे हैं, इसमें से आप हमें 1,500 करोड़ दे दो, 3,500 आपका है, जैसे मर्जी मार लो, कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई आपको पूछेगा नहीं। ऐसे चल रहा है सिस्टम वहाँ? नहीं चल रहा। ये सिस्टम शायद पुराना होगा, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं
हमने आपको क्या बोला कि जब करप्शन को लीगलाइज कर दिया जाए, जी उसको जब सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए, जी तो उसके लिए भी एक तरीका निकाला गया। उसमें कहा गया कि अगर कोई कॉरपोरेट लोन लेता है अपनी इंडस्ट्री के लिए जी या किसी भी अपनी यूनिट के लिए, अगर वो उसको नहीं चला पाता है तो उसके लिए एक कानून लाया गया एनसीएलटी का, जिसमें आप दिवालिया हो जाते हैं तो आप उसके दरवाजे पर चले जाएंगे। ओके सरकार कहेगी अच्छा आप दिवालिया हो गए, आपने बैंक से कितना लोन लिया था, लगभग आपने 10,000 करोड़ रुपए मान लीजिए लिए थे, तो आपसे अब हम पैसे की उगाही करेंगे। जैसे नीरव मोदी का नाम आता है, मेहुल चौकसी का नाम आता है, विजय माल्या का नाम, ऐसे नाम आते हैं, बहुत सारे नाम है, बड़े नाम, बड़े नाम है जिनको बहुत पैसा लिया गया। उनसे बोलते हैं अब आप कंपनी नहीं चला सकते हैं, सो आपकी कंपनी हम किसी दूसरे को बेच देंगे। वो कंपनी किसी दूसरे को बेच दी जाती है। उसने अगर 10,000 करोड़ का लोन लिया है तो वो किसी दूसरे को कंपनी 5,000 करोड़ में बेच दी गई। जी अब जो ये पैसा था इस आदमी के पास जिसने लोन लिया था, उसने तो लौटाया नहीं, और कंपनी की कीमत क्या थी, 5,000 करोड़। तो 5,000 करोड़ उसको सीधे सीधे लाभ हो गया। वो चार्टेड से घूम रहा है, मस्ती में रह रहा है, रहने दीजिए। तो उन लीगलाइज किया जाता है चीजों को, और इसमें अदालत भी कुछ नहीं कर पाएगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिस्टम है एक। तो जब कोई सिस्टम इस रूप में बना दिया गया जिसमें आप पैसा लेकर भी बच सकते हैं, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात जो आपने किसानों का जिक्र किया, हम आपको एक जानकारी देते हैं। आपने पंजाब और हरियाणा के किसानों का जिक्र किया। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र के, विदर्भ के किसानों की है, जहां सबसे ज्यादा खुदकुशी होती है, आत्महत्याएं होती हैं किसानों की। और वो लोन कितना लेते हैं, 65% जो खुदकुशी करने वाले लोग हैं वह लोन के दबाव में ही खुदकुशी करते हैं। लेकिन जब उसका एवरेज निकाला गया तो पता चला कि 35,000 रुपीज ओह माय गॉड एवरेज। किसी ने उससे कम भी लिया था, किसी ने ज्यादा भी लिया था। और कम की स्थिति यह है कि 7,000 रुपए ना लौटाने पर पहले बकरी ले जाते हैं, वाह, फिर गाय उठाते हैं, फिर कुर्की करते हैं, फिर वो खुदकुशी कर लेता है। ये विदर्भ का हाल हम आपको बता रहे हैं। तो स्थिति पंजाब की तो कंपैरेटिवली फिर भी अच्छी है, वहां पर बड़ी चीजें उस रूप में खुदकुशी का डाटा नहीं है, लेकिन खासतौर से विदर्भ और मराठवाड़ा, महाराष्ट्र में ये दोनों बहुत जबरदस्त है। उसके बाद अब नई स्थिति आ गई है तमिलनाडु और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की। और इस दौर में पिछले लास्ट 5 इयर्स में मैक्सिमम खुदकुशी हुई है जी। मैंने लास्ट 20 इयर्स के भीतर में अगर आप 5 इयर्स को बांटते चले जाएंगे तो लास्ट 5 इयर्स जो थे वो मैक्सिमम किसानों ने खुदकुशी की है। वजह सबसे बड़ी कर्ज में डूबे होना, और दूसरी सबसे बड़ी वजह फसल बर्बाद अगर हो गई, अचानक ओला पड़ गया, पानी पड़ गया, और उसकी एवज में आपको मिला ही नहीं कुछ जी, तो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? हम उसकी फाइल मंगवाते हैं, वो टेबल के नीचे उसको लेते हैं जरा फाइल, उसका पूरा डाटा मेरे ख्याल से ये पब्लिक में है, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी तमाम चीजें, और उसमें तमाम बड़ी कंपनीज के नाम है। आपको एक जैसे जानकारी दे दें कि अभी हाल में जी मेरा घर परिवार नहीं चल पाता है, पत्नी के जेवर्स मुझे बेचने पड़ रहे हैं और घर चल रहा है, तो उनकी 2 कंपनी थी, एक नेवल में थी और एक दूसरी कम्युनिकेशन में थी। उन्होंने भी लोन लिया हुआ था, तकरीबन एक कंपनी के नाम पर 1,000 करोड़ लिया था, दूसरी कंपनी के नाम पर 1,800 करोड़ रुपए लिए थे जी। तो ऐसे एक लंबी फेरिस्त है तमाम लोगों की। हम देखते हैं, आपको अगर जानकारी दे पाए तो उस डाटा पे हमने बड़ा काम किया है जी। वाजपेयी जी, असल में आपका जो ज्यादा काम है, आपकी ज्यादा मेहनत है जो, वो है ही डाटा के ऊपर, क्योंकि जितने डाटा आप कलेक्ट करते हैं, मेरा ख्याल है भी मीडिया में मैंने देखा है, क्योंकि इंडियन जो भारतीय चैनल हैं उसमें जब हम देखते हैं तो बहुत लोग बस हल्ला गुल्ला करना जानते हैं, जैसे सारा दिन अपने आकाओं की प्रशंसा करने में ज़्यादा रुझे रहते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता कि जाकर देखें स्टैट्स क्या हैं।
आंकड़े क्या नहीं बोल रहे नहीं, हैं? ये बहुत आसान काम है ना। देखिए, मेरे ख्याल से एक बात आपने जो शुरू में कही थी जी कि भारत के भीतर में बोलने की आजादी नहीं है, जी, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आप बोल रहे हैं। हमें लगता है कि जर्नलिस्ट, हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम्म, तो काम क्यों कर पा रहे हैं? बोलने की आजादी है तभी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। हमें इसमें थोड़ी सी आपत्ति है। ओके। होता क्या है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, किसी मीडिया हाउस में काम करते हैं, तो उसके अपने करप्शन या उसकी अपनी मजबूरियां जो होती है, जी वह कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि उसके अनुकूल हो जाए। जी, तो ये जर्नलिस्ट अगर कोई है तो फिर वो जर्नलिस्ट ही रहेगा, और अगर वो जर्नलिस्ट नहीं है तो फिर वो कहीं भी काम करे वो जर्नलिस्ट नहीं रहेगा। तो हमें लगता है कि शायद ये बहुत आसान काम है कि आप सरकार कहती है आप हमारे अनुकूल हो जाइए, तो हो जाएगा, मान लीजिए उसके अनुकूल काम करने लगेगा, तो ठीक है, ये उसकी जरूरतें हैं। लेकिन जो कंपनियों का नाम आप कह रहे थे, हम उसको हमने अपने हालांकि वीडियो में बड़ा लंबा चौड़ा उसका जिक्र किया है। हाँ जी, मैं सुना था आपका वो वीडियो। नहीं, हमारे पास वो है, हम आपको जैसे बताते हैं। जी आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड जैसे है जी, उसने 8,000 करोड़ का लोन लिया, वो 8,000 करोड़ का लोन लिया। जी। रिकवरी जो कर पाए वो सिर्फ 1,703 करोड़ की कर पाए। वाह, ये सबसे ज्यादा लेने वालों में थे। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो भूषण पावर का आता है। हाँ, भूषण पावर की नीलामी भी हो रही है, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया। उसने 7,705 करोड़ का लोन लिया, 7,705 करोड़ का। उससे एक पैसे भी रिकवरी नहीं कर पाए। अच्छा, हाँ, अब इसके बाद आइए, जैसे वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड है, उसने 4,477 करोड़ का लोन लिया। जी जी, उससे भी कुछ भी रिकवरी नहीं कर पाए, नील रिकवरी है। इसी तरीके से लंबी फेरिस्त है जिसमें श्री महालक्ष्मी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एथिना छत्तीसगढ़ पावर कंपनी, वीएमसी सिस्टम, कोस्टल एनर्जी है। ये लंबी है और मेरे ख्याल से ये 75 की लिस्ट बड़ी है लंबी हमारे लिस्ट पास। है। हाँ जी, हाँ, इसमें जेट एयरवेज भी है, आपको बता दें, आपने सफर किया हो तो। वाह, जेट एयरवेज ने भी 1,574 करोड़ का लोन लिया, गरीब कंपनी। एक पैसा भी वापस नहीं किया, तो बंद हो चुका है। तो एक तरफ सरकार ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं कर रही है, इसमें हम सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार ने कार्रवाई की और वो बंद हो गई। देखिए, जेट एयरवेज बंद हो गया, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि ये रुकेगा कब कि हम लोन ना दें, पहली बात। दूसरी बात, लोन जो ले लेते हैं वो भाग ना जाए देश छोड़कर और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो और कोई इस रूप में साइकिल का हिस्सा भी ना बन सके, ये कब होगा? क्योंकि 2014 में जो एनपीए था बैंकों के ऊपर में, वह लगभग 2.5 लाख करोड़ था और आज की तारीख में वो लगभग 12 लाख करोड़ हो चला है। तो इस बीच में बहुतों को पैसा मिला ना, तो हम विरोध करते हैं ब्लैक मनी का, हम विरोध करते हैं इन बातों का कि ऐसा, लेकिन ये रुकेगा कैसे? जब हम इसको लीगलाइज कर रहे हैं तो फिर ये रुकेगा कैसे? सो लीगलाइज होने की वजह से ये लग रहा है कि इट्स वेरी इजी कि जो मर्जी लोन ले, उधर से लोन लेकर जहां मर्जी दुनिया के किसी कोने में भाग जाए। एग्जैक्टली, सिस्टम ही ऐसा है कि किसान के लिए सिस्टम काम नहीं करेगा, कॉर्पोरेट के लिए करेगा। इस सिस्टम जब आप इस रूप में बना लेंगे ना तो एक मुश्किल हो जाती है। जी, मैं थोड़ी सी मीडिया की बात करूंगा। अभी बोल रहे थे कि भारत के कानून में आज़ादी है बोलने की। आज ये हम कह रहे हैं। हाँ जी, मैं इसलिए मैं आपका नाम ले ही रहा था। आज पुनिया परसुन वाजपेयी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आज़ादी है। पर जब आप किसी भी चैनल को ऑन करते हैं उसमें गवर्नमेंट की प्रशंसा हो रही है, जो करप्शन हो रही है, जो ये सिस्टम को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसकी बात कोई भी चैनल, कोई भी एंकर, कोई भी होस्ट ना रेडियो पे ना टीवी पे बता रहा है। मेरे को ये पता लगा है कि INB इंफॉर्मेशन जो आपके एंड जो ब्रॉडकास्टिंग वाले हैं, उन्होंने काफ़ी आदमी हायर किए हुए हैं जो आपको और मेरे को मॉनिटर करते हैं कि सच कौन कौन बोल रहा है और हमारे पक्ष में कौन जा रहा है। ये वाकई उनकी ऐसी टीम बनी हुई है कोई? नहीं, ये तो ओपन है, मतलब आपको वहां से लग सकता है। ये तो मॉनिटरिंग हर लेवल पे हर सरकार करती है। जी जी, इस सरकार
के लिए अच्छी बुरी चीज ये है कि वो चाहती है कि उसके अनुकूल ही सारी चीजें दिखाई जाए। जी जी। तो वो मॉनिटरिंग इस रूप में होती है, इससे कोई इनकार नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वह कुछ दिखाता नहीं है जो हो रहा है देश में, तो मेरे ख्याल से ये पूरा देश अब परेशान है कि देखिए, जैसे गायक होए तो आपका गला अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल। तो आप मीडिया में हैं तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। संयोग से भारत के मीडिया की क्रेडिबिलिटी अब भारत के भीतर ही नहीं बच पा रही है, तो ये उसका अपना संकट है जी। तो उस संकट से वो कैसे निकलेगा, किस रूप में निकलेगा। लेकिन इसके पैरेलल में एक दूसरा सवाल भी ये है कि जब आप डेमोक्रेसी को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कुछ सवाल खड़ा करते हो जी, और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई या तमाम इंस्टीट्यूशन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मातहत काम करने वाले जो स्वायत्त ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके भीतर को लेकर भी कुछ सवाल हो, तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि आप अगर सरकार के साथ खड़े हैं, उसके अनुकूल हैं, तो आप सहूलियत से हैं। तो सहूलियत से तो हर कोई रहना चाहता है। तभी बहुत बहुत लोग बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं मीडिया को। गोदी बोलिए कुछ बोलिए, लेकिन सहूलियत है कोई, और सहूलियत चाहिए सभी को। अच्छा वाजपेयी जी, एक और सवाल है मेरे पास। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं पंजाबी जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सवाल करूंगी। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਗੁੰਡਾ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਆ कि तुसी राजनीति च नहीं जा सकते? नहीं, भारत में कानून है और भारत में एक सुविधा ये है कि अगर आप आरोपी हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप सजा याफ्ता हो गए, अगर आप दोषी करार दिए गए तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जितने भी लोकसभा या विधानसभा में जितने भी पार्लियामेंट्रीज बैठे हैं या वहां पर विधायक बैठे हैं, एमएलए बैठे हुए हैं, जितने पर केस है, क्योंकि वहां पर होता है कि जब आप फॉर्म भरते हैं इलेक्शन का तो आपको एक हलफनामा भी देना पड़ता है कि आपके ऊपर कौन कौन से केस चल रहे हैं, तो वह फेरिस्त जो है उनको बतानी पड़ती है और उसी के मातहत, लेकिन वो उसको सजा नहीं हुई होती है और इसी का लाभ हर कोई उठाता है। और अब तो इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो लोग के ऊपर कुछ केस चल रहे हैं उनको अखबारों में एडवर्टाइजमेंट भी देना चाहिए कि हमारे ऊपर ये केस चल रहे हैं। लेकिन फिर इससे हटकर जरा आप अपना दिमाग लगाना शुरू कीजिए कि जिसके ऊपर केस चल रहा है वो जब एडवर्टाइजमेंट देता है कि मेरे ऊपर ये केस चल रहा है, मान लीजिए मर्डर का केस चल रहा है, एक डकैती का मर्डर चल रहा है, तो उसका सम्मान उसके अपने समाज में बढ़ ही जाता है। वाह, उसका सम्मान बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी बने तो उन्होंने अच्छी बात कही थी। 2014 अगस्त का महीना था, पार्लियामेंट के भीतर में मेरे ख्याल से उनका पहला भाषण था। उन्होंने कहा था कि जो भी केसेस चल रहे हैं क्रिमिनल के सारे पार्लियामेंट्रीज पर, हम चाहेंगे कि 2015 में सारे केसेस का निपटारा फटाफट हो, क्लियर हो, कोर्ट्स जो है क्लियर करे और उसके बाद पार्लियामेंट में सारे लोग आए जिन पर कोई केस नहीं चल रहा है। बड़ी तारीफ हुई थी इसकी और हम लोगों ने भी बहुत तारीफ की थी और उसकी स्टोरी की बताया, बहुत अच्छा है। लेकिन हुआ क्या, 2014 में जितने नंबर ऑफ क्रिमिनल्स जिन पे आरोप था जो पार्लियामेंट पहुंचे थे, उससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में 2019 में पहुंच गए और 2015 तक उनको सफाई हो जानी थी, लेकिन कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट ही नहीं बना जो कि कार्रवाई करना शुरू कर देता जी। तो चीजें फिर ठप हो गई। कहा गया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे चीजें होंगी
हमारे ख्याल से ये भारत की एक बड़ी कमजोरी भी है, चीजें इंप्लीमेंट कैसे करा पाए और उसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उसके लिए जो आपको नैतिक बल चाहिए, और आप चाहते हैं कि राजनीति में शुद्धिकरण हो जाए, हर कोई साफ सुथरा हो जाए, तो फिर राजनीति को भी आपको उसी लिहाज से जीना होगा। पैसा कम खर्च हो, बांटना ना पड़े पैसा, तो प्रभावित लोग को कास्ट के आधार पे नहीं करें, रिलीजन के आधार पे नहीं करें, अपने काम के आधार पे करें, पढ़े लिखे हों, कम से कम एजुकेटिव हों, फेक डिग्री ना हो, ये सारी चीजें होंगी ना। तो जब ये सारी चीजें नहीं होंगी तो फिर आप सिर्फ कह रहे हैं, और कह के ही लोगों को अच्छा लग जाता है कि अच्छा कहा तो इसने। जी। तो ये अब क्या आपने जो फेक डिग्री वाली बात की है जी, वो तो मेरा ख्याल है सब दुनिया को पता है कि कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन कौन मुख्यमंत्री हैं जिनके पास राजनीतिक में आने के बाद ये सब डिग्री पब्लिश हुई हैं, प्रिंट हुई हैं। कई ऐसे अदारे भी हैं जो अभी तक भारत में, भारत की धरती पर तो नहीं हो सकता नासा पे हों, पर उन लोगों के पास उन यूनिवर्सिटियों और उन अदारों की डिग्री हैं। ऐसे केस सिर्फ भारत में ही हो सकते हैं? नहीं, थोड़ा इसको हमको लगता है एक व्यापक तौर पे चीजों को देखना चाहिए, सिर्फ इस लहजे में नहीं देखना चाहिए। आपको जानकर ये हैरत होगी कि भारत में जो स्कूलों में पढ़ाने के लिए बीएड की डिग्री हर किसी को चाहिए जी, और बीएड की डिग्री की कीमत है लगभग 1800 रुपए। दिल्ली से सटा हुआ मेरठ का इलाका है, वहां बन जाती है, आपको डिग्री मिल जाएगी। इसी तरीके से अब तो बड़ी तादाद में इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर्स की भी डिग्री मिलती थी भारत के भीतर में, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भारत में फोर्स बहुत ज्यादा है, लेबर फोर्स जी, हर स्तर पे, वो चाहे प्रोफेसरशिप में हो या टेक्निकल एस्पेक्ट में हो, इतनी बड़ी तादाद में है कि उसमें डिग्री दर डिग्री मैनेज, जो आपकी फाइल जितनी मोटी होगी वो आपकी क्वालिफिकेशन बता देती है जी। आपका अपना ज्ञान क्वालिफिकेशन नहीं बताता है, डिग्री बताती है। तो डिग्री को पाने के लिए कुछ आपको खर्च अगर करना पड़े, पढ़ना ना पड़े, और जब एक ऐसा समाज बन रहा होगा तो उसके रिफ्लेक्शंस पॉलिटिक्स में भी होंगे, इससे कहाँ इनकार है। तो ये बड़ी सामान्य सी स्थिति हमको लगती है कि डिग्री है नहीं है, फेक डिग्री है, क्या है जी, पर है, सब चलता है, क्योंकि हमें पता नहीं, हमको लगता है कि आपको पूरे समाज को ठीक करना चाहिए पहले, उस दृष्टिकोण से बढ़ना चाहिए, और आपके दिमाग में एक विजन होना चाहिए कि कोई कंट्री हो तो कैसी हो। हम लोग सोचते हैं सिर्फ 5 इयर्स के लिए सत्ता में आए हैं तो कैसे कमा पाए, कैसे भरपाई कर पाए, देनदारियां चुका पाए, आने वाले वक्त में 7 पीढ़ियों के लिए कमा, ये सब सोचा जाता है जितना, हाँ जी, जितना, हाँ जी वाजपेयी जी, जितना प्रोपोगंडा गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भारत में हो रही है, बड़े अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, किसानों के लिए अच्छे काम हो रहे हैं, लोग आंदोलनों में क्यों आ रहे हैं? क्या लग रहा है, आशंका है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से लोग उकता चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, कहीं भारत में अराजकता ना फैल जाए, ये ऐसा कहीं डर नजर आ रहा है आपको? जिस तरीके से डिक्टेटरशिप, मैं बोलूँगा शब्द, मेरा ख्याल इजी रहेगा, कि तीनों बिल पास हुए, कोई वोटिंग नहीं, ज़बरदस्ती धक्के से पास करवाए गए, पास करवाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया गया, और राष्ट्रपति जी को बहुत मेंबर पार्लियामेंट मिले भी कि इस कानून के ऊपर आप दस्तखत मत कीजिए, पर उन्होंने जैसे ही उनके पास बिल आया, कुछ दिनों के बाद ये सारा कुछ चल गया। आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई अराजकता फैल सकती है? लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं सिस्टम से। नहीं, हमें नहीं लगता है कि कुछ ऐसी अराजकता फैल जाएगी, और हमें लगता इसलिए नहीं है जी, क्योंकि भारत ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं जी, और मौजूदा वक्त में ऐसा कुछ भी नहीं है, सड़कों पर भी नहीं है। ओके, आपको जान के हैरत होगी कि किसानों को लेकर तो जब टिकैत बैठे थे वोट क्लब पर दिल्ली में, उस समय ज्यादा बड़ी तादाद में किसान जमा हो गए थे बनिस्बत अब 3 बिल जो पास हुआ है उसके विरोध में भी किसान नहीं आ पा रहा है जी, क्योंकि उसकी वजह है
और भारत में देखिए इमरजेंसी के समय का आंदोलन, मंडल कमीशन के समय आंदोलन, अयोध्या को लेकर इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए थे, उतनी तादाद में हम निकलते नहीं है। सवाल ये हो गया है कि किसान अपने तौर पर अगर फ्रस्ट्रेटेड है, युवा अपने तौर पर फ्रस्ट्रेटेड है, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या हर के सामने एक अपनी मुश्किल है, तो उसके सामने कोई विजन पॉलिटिकल नहीं आ रहा है। एक पॉलिटिकल वैक्यूम है हमारे यहाँ। और ये वैक्यूम हमें थोड़ा सा शक लगता है कि ये वैक्यूम तानाशाह को पैदा करता है। ये वैक्यूम दरअसल तानाशाह को नहीं पैदा करता, ये वैक्यूम दरअसल एक मेस पैदा करता है, यानी चीजें सिस्टमेटिक नहीं रही, एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है। उस परिस्थिति के क्या रिएक्शंस, क्या रिपल्शंस होंगे हम नहीं जानते आने वाले वक्त में। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस देश ने जितने भी आंदोलन देखे हैं, मौजूदा वक्त में आंदोलन के लिहाज से अभी सबसे कमजोर स्थिति है। लोग एकजुट नहीं है, बटे हुए हैं, विभाजित हैं, अपनी जरूरतों में फंसे हुए हैं, अपने घर की जरूरत है, जिंदगी जीने की जरूरत है, 2 जून की रोटी की जरूरत है, इन्हीं में सब फंसा हुआ है। और इसको मैनेज करना बहुत आसान काम, इजी है, गवर्नमेंट के लिए इसको मैनेज करना बहुत इजी है। कैसे लग रहा है कि आने वाले समय में जो रिसेंटली गवर्नमेंट बिल पे बिल ले आ रही है, इस 2 वीक में या 1 महीने में कितने बिल गवर्नमेंट ने लाए हैं जो इम्प्लीमेंट किए हैं थोड़े समय में? नहीं, थोड़े समय की नहीं बात है, सबसे फास्टेस्ट दौर ये रहा है। 10 दिन के लिए पार्लियामेंट चली जी, 25 बिल रखे गए, लोकसभा में 23 बिल पास करा लिए गए, राज्यसभा में 18 बिल पास करा लिए गए। ये फास्टेस्ट दौर रहा है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर में जिसका बहुमत रहता है उसके हिसाब से काम होता है। चले। और इसको इंदिरा गांधी के दौर में भी देखा गया था, ये भी कोई भारत में नई चीज नहीं। और जिस तरीके से बिल पास कराए गए हैं, वोटिंग नहीं हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। हम लोगों ने इस पे थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला 18 बिल ऐसे हैं जो इससे पहले दूसरी सरकारों के दौर में भी पास हुए। यह भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। मसला खाली इतना है कि पहले आंखों में शर्म थी जो अब नहीं है, तो इसलिए वो गई, वो आधी रात के बाद का वक्त हो गया। आपके सिर्फ 2 मिनट और लेने हैं। आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में यही जैसे चल रहा है सिस्टम, क्या लोगों की दिलचस्पी है वो ऐसी सरकारों को लाइक करेंगे, या कुछ तब्दीली आने की संभावना है पॉलिटिक्स में? भारत में फिलॉसफी बड़ी साफ है, हमारे बदले किसे लाइएगा आप, और जिसे लाइएगा वो सक्षम है या नहीं है। यस, तो अल्टरनेटिव कौन है, ये सवाल हमारे पॉलिटिकल फ्रंट पे लगातार सामने आकर खड़ा हो जाता है। और इसमें कहने में कोई अंतर नहीं है कि भारत की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं उसमें कोई धुला हुआ नहीं है। करप्शन हर जगह, हर स्तर पे है, हर पॉलिटिकल पार्टी के भीतर है। इसीलिए नैतिक बल किसी में नहीं है। नैतिक बल तभी होगा जब आप ईमानदार होंगे जी, और आपके पास एक समझ होगी और इस देश को कैसे गढ़ना है, जिसमें इस देश के हर तबके को सहूलियत और सुविधा और उसके कॉन्स्टिट्यूशनली पावर का इस्तेमाल हो सके जी। यह सोच जब तक नहीं होगी तब तक हमें लगता है कि हम लगातार धोखा देंगे। और संयोग ऐसा है कि धोखा देने की प्रक्रिया तमाम सरकारों ने की थी। मौजूदा वक्त में एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब इस महामारी ने पूरी इकोनॉमी को और धराशायी कर दिया, और जब इकोनॉमी ही रुक गई तो आप एक ऐसे क्राइसिस में आ गए कि अब आपको पूरे देश के बारे में सोचना है। इससे पहले आप एक कास्ट के बारे में सोच सकते थे, एक समुदाय के बारे में सोच सकते थे क्योंकि इकोनॉमी चल रही थी। एक हिंदू मुस्लिम कर सकते थे क्योंकि इकोनॉमी चल रही थी। ऊंची जाति, नीची जाति, दलित ब्राह्मण कर सकते थे क्योंकि इकोनॉमी चल रही थी। अब इकोनॉमी तो ये नहीं देखेगी कि दलित के पेट में भोजन है या नहीं है, या ब्राह्मण के पेट में नहीं है। अब आप करो क्या करोगे? रोजगार तो हर व्यक्ति को चाहिए, स्कूल कॉलेज हर छात्र को चाहिए, पढ़ाई के बाद उसको फिर आगे सोचना है। अगर ये इतने बड़े क्राइसिस पे आ गया है तो इस उम्मीद और भरोसे में रहिए कि इस देश को हम लोग नए तरीके से गढ़ लें, एक अच्छा देश भी बना। आपकी सच्ची सच्ची बातें सुनने के लिए दिल नहीं करता, चाहे समय हो गया। आपने बहुत बढ़िया तरीके से पूरा
एनालिसिस किया पूरे भारत का सिस्टम कैसे चल रहा है। आखिरी सवाल बलजिंदर जी का है, सिर्फ 2 मिनट आपके और चाहिए, देन नेक्स्ट टाइम ਜੇ समय लगा तो जरूर आपके साथ खुल के और बातें करेंगे। हाँ जी ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। इतनी पॉजिटिविटी कैसे आपके अंदर? सच लड़ने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि ये बड़ी सामान्य सी बात है जी। बस हम लोग तो यही बांध कर चलते हैं, पैर उतना ही फैलाइए जितनी चादर हो, वाह, बाकी तो जीवन कट जाएगा। बाकी हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी मुश्किल हालात ऐसे होते हैं, हमें नहीं लगता है ऐसा कुछ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच लेना चाहिए कि चादर आपकी काफी बड़ी है, इसलिए आप इतना सच बोल जाते हैं। आपने तो किंग साइज की चादर ली है। वाजपेयी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, क्योंकि आधी रात से भी ज़्यादा समय हो गया है हमारे, चाहे अभी दोपहर 1.5 मिनट के बाद पूरी दोपहर होने वाली है। बड़ा अच्छा दिन निकला हुआ है, एंड विश यू गुड लक कि आप ऐसे ही अपनी कलम से सच लिखते रहिए, और इस ज़बान के साथ जो सच बोल रहे हैं, शायद आपको लग रहा है कि भारत नहीं, दुनिया के कोने कोने में जो लोग भारत से बाहर मुल्कों में जाकर बसे हैं, आपके सच को सल्यूट करते हैं। देयर इज नो डाउट कि आपसे सीखने के लिए हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी अच्छी सोच है, जिससे हमें आगे सच बोलने के लिए प्रेरणा मिलती है। हमारी शुभ इच्छाएं, परमात्मा आपको तंदुरुस्त रखे। थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो कुलदीप सिंह जी कहते कि वाकई सच ते तुरना, सच ते अड़ना और अपनी गल स्पष्ट करके रखनी। और मैं इन्हां दियां जिन्नियां भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਇਹੋ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 12:30 ਵਜ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ NDTV ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, वाजपेयी जी वाई यू आर टेलिंग द ट्रूथ, आप सच क्यों बोल रहे हैं? वो कहता है मेरे हाथ में कलम है और ये कलम सच लिखने के लिए है। मेरे को परमात्मा ने ये जबान दी है, ये जबान सच बोलने के लिए है। फिर कुदरती गल है, ਜਿਹੜੇ सच बोलते ने, सच लिखते ने, सच्चे कर्म करते हैं, उन्होंने फांसी के फंदे ते भी लटकना पैंदा है। उन्होंने एयरपोर्ट तो वापस डिपोर्ट भी किया जाता, सच बोलना बंद कर दे, नहीं तेरी एंट्री बंद। पर कि सच बोलना बंद हो गया? नहीं। बिल्कुल जी, बहुत वधिया लगा जी आज गलबात करके, बहुत वधिया लगा। कहंदे कि जमीर जागदा होना चाहिए। पत्रकारी करनी हर किसी दे वस दी नहीं हुंदी, पर करदा हर कोई है। बहुत सारे लोग आ, हज़ारां ही चैनल आ, हज़ारां ही रेडियो आ, पर किते ना किते मजबूरी बस कोई उन्हां दे मूंह च शब्द पाए भी जांदे आ, पर कई ओ निगल लेंदे आ, कईयां दे गल च फस जांदे आ, ते ओ फिर कहंदे भी आ लो अपने शब्द भाई ते सानू नहीं है मंजूर। सो बड़ा वधिया लगा, थैंक यू कुलदीप सिंह जी। और तुहाडे नाल फिर असीं बुधवार माफ करना वीरवार मुलाकात होवेगी। सो उस दिन फिर असीं किसी होर वधिया विषय दे उत्ते गलबात करांगे। सो सत श्री अकाल जी, समा देण लई सत श्री अकाल। बिल्कुल जी, बहुत ही वधिया लगा ते मैनूं पूरी उम्मीद है कि खबरसार बिहाइंड द न्यूज़ विच जिहड़ी साडी कोशिश हुंदी है तुहाडे तक सच लैके आउणा, बेशक वो साडे अपने मुल्क दा होवे, साडे गवांढ मुल्क दा, ते चाहे पंजाब भारत दी असीं क्यों ना गल करिए।
ਸੋ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਖਾਸ ਹੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 7 ਵਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੱਲ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਕੱਲ ਖਬਰਸਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।